हाँ मैंने So, dear student, in this lecture we will discuss about the Riemann sum and the definite integral. As we already discussed about the indefinite integral and the technique of the indefinite integral. So, uh, before the definite integral, we will discuss some basic, which is known as the Riemann sum, depend on the Riemann sum. So, this section 5.1, area and distance. What is mean by area? It is this question. The answer of this question is very easy if the side of that region is straight. For example, the in the first picture you can see that the this is the rectangle. Side is width is W and length is L. So the area of this rectangle is A is equal to length time width. Now similarly, the area of this triangle is equal to the half of the base, which is B, time the height of this triangle. Similarly, for this polygon, this is a polygon having many sides. So the area of polygon is the sum of the area of these are this is one triangle, this is another triangle, and this is another triangle. So area of this polygon is equal to the sum of area of this rectangle, which there is A1 triangle A1, A2, A3, and A4. So, but now the question is, what is the area of the region S? This region is denoted by S when this area and the sides of the area are not straight. These are the curved side. So for the curved side, so now this is the area bounded by the x-axis, this one, and the vertical line, which is x is equal to a. So this is the vertical line, and another vertical line, x is equal to b, and this is bounded under the curve y is equal to f of x. This is a function. This is a curve represented by y is equal to f of x. So what is the area of this region S? So the area of this region is defined as x is less or equal to b and greater or equal to a, where y is greater or equal to 0 and less or equal to f of x. We can write this in the set form. तो मेन क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का रीजन जो कर्व्ड रीजन है इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट राइज होता है कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करके फिर सारा सम कर लेते हैं। तो इसको हम एरिया ऑफ दिस कर्व्ड रीजन कहते हैं। So now we're starting by this subdividing this region S into n steps, that is S1, S2, S3, and SI, and then SI plus 1 and so on. ये step क्या बनेगा SN minus 1 and this is N, and this is X naught. This is X naught. This is equal to X naught, and this is equal to xn. Yeah, this is our interval. This is A and this is B. So इनका जो starting point है, this is known as x naught. जो end point है, this is known as the xn. We represent this interval in the form x naught to xn. So we divide this
all region, this region S into small steps denoted by S1, S2, S3 up to Si and Sn. Then the width of the interval is what is this is the width of the interval. The width of the interval AB is B minus A. क्योंकि फाइनल से इनिशियल माइनस कर ले तो ये हमारे पास आ जाता है width of the interval. So width of each of the n step. So as we divide this whole region, this interval, and n step, so that is why the width of each step, the width of this step, this S1 step is equal to B minus A divided by n. So when n is equal to 1, then this is b minus 1, b minus a divided by 1. जो हमारे पास n strips में हमने divide किया हुआ है, so the width of each of the n step is equal to b minus a divided by n. और डिपेंड करता है n के ऊपर कि कितने steps में आप divide करते हैं. Where n is the number of steps of this region. These strips divide the interval this into n subinterval. These interval are known as the n subinterval because this is a strip. This is A, which is equal to x naught, as already mentioned you. And this is x1. This is x2, and so on. This is xn minus 1, and then this is the final one is xn, which is equal to b. So this is a subinterval from here to there. This one, that is x naught to x1. This is x1. Or again this is a subinterval from x1 to up to x2. This is another interval, and this is another subinterval x2 to x3. So we can divide this strip, this interval A to V in the subinterval n subinterval x0 x1 x1 x2 x2 x3 and so on, and the final one is xn into xn minus 1 comma xn, where x0 is equal to A and xn is equal to B. This is the final and initial point of the interval, the right end point of the subinterval. Now the right end point of the interval, because we divide this interval in this one. So this is the left side of the interval of steps. This is the right side of the step, and if we take this point, then this is the mid of the step. This is the mid of the step. Okay, so this is the right side. So x1 लेंगे हम. अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑफ द इंटर स्टेप है, तो ये इस स्टेप का ये लेफ्ट है, तो ये हम फिर एक्स नॉट लेंगे. मिड लेना है तो एक्स नॉट और एक्स वन को डिवाइड करके 2 पे मिड लेना है तो एक्स नॉट प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 भी डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है. तो 3 तरीक़ों से हम इसका सम ले सकते हैं. एक आपके पास ये एक राइट साइड ले ले ऑफ द स्ट्रिप ले लें, ये एक आपके पास लेफ्ट साइड ले सकते हैं, जो कि सिर्फ रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट विल बी सेम. एक तो ये कि आप इसको मिड साइड से ले लें. तो इन तीनों चीज़ों को हमने लेना है. रिजल्ट इन तीनों का सेम ही आता है. जस्ट फार्मूला में अपने एफ ऑफ एक्स नॉट से शुरू करना है, इसमें यहाँ पे एन तक जाना है, तो ये एक्स एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 तक आ जाना है. और अगर आपने राइट साइड पे ले लिया स्ट्रिप, ठीक है, तो आपने एफ ऑफ एक्स वन से लेकर एफ ऑफ एक्स एन तक जाना है. मिड पॉइंट तक लेना है तो x1 स्टार x2 स्टार हम ले लेते हैं, बाद में ही डिस्कस कर लेते हैं.
So the right end point of the subinterval, these are the right interval side of the subinterval. Okay, so this will be equal to x1 is equal to a plus delta x, because this is a and this is the delta x. This is the delta x. You see, this is the width. Width is represented by delta x because this is change in x. This is again delta x. This is delta x. This is delta x. So x1 is equal to a plus delta x. X2 is equal to a plus 2 delta x. Okay, delta x and delta x. So this will be equal to 2 delta x. x3 is equal to a plus 3 delta x and so on. इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास द राइट एंड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल, इसके जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और मिड पॉइंट है, तीनों में बताया था। इसको हम जनरली लिख लेते हैं एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस आई टाइम डेल्टा एक्स। तो ये जनरल फॉर्म है, इसको आप लोग फॉलो करें। वेयर अगर आपने राइट एंड पॉइंट लेना है तो आई इज इक्वल टू आपने स्टार्ट करने देना है 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर आपने ये आपके लिए राइट एंड पॉइंट के लिए, राइट एंड पॉइंट के लिए, राइट एंड पॉइंट के लिए आपने लेना है इस तरह। ठीक है, लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए लेना है तो आपने यही लेंथ लेना है, बट आई इज इक्वल टू स्टार्ट कर देना है फ्रॉम 0 देन 1 देन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो विड्थ है, जो राइट साइड है, एंड पॉइंट है अब सब इंटरवल, तो वो हम दो तरीकों से लेते हैं। देखिए, मिड पॉइंट का मैं बता देता हूँ, मिड पॉइंट के लिए कैसे लेते हैं तो वो बाद में बताता हूँ। Now let's approximate the ith strip SI। मतलब ये है कि ये x0 x1 x2 x3, इसके बाद मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ जिसको मैं xi कह देता हूँ। दिस इज xi और ये हमारे पास xn है। तो ये xi इसको मैंने नाम दे दिया। ये xi माइनस वन आएगा, ये xi आ जाएगा, फिर xi प्लस वन, xi प्लस थ्री एंड सो ऑन, xi xn माइनस वन आ जाएगा, ये आखिर में xn आ जाएगा। सो लेट वी कैलकुलेट दिस वन by rectangle with width delta x and height f of xi. This is the height f of xi, because I already discussed with you that this is the value of the function at x equal to I, and physically this value of a function represent height. So this is the height and this is the rectangle shape. So we need two things. This is the height of the rectangle, which is f of xi, and delta x. We need this delta x. So this is delta x and this is f of xi. So what is the area of this rectangle? The area of this rectangle is the height multiplied with the width, which is equal to delta x. Okay. Similarly, the what is the area of this rectangle? This is the height f of xi, f of x1. F of x1 is the height of this one, and delta x is the length of this one. So we can write in the sum, because ये हमारे पास ये जो साइड है, दिस इज f of x1 और इसका जो विड्थ है दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। हर एक का विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स, इसका भी डेल्टा एक्स है। तो इसका एरिया किस चीज़ का इक्वल है? width multiplied with this height. So this is the height multiplied with width. तो ये इस rectangle का area है। Similarly, this is f of x2. This is the height, and delta x is the width. So this is f of x2 and delta. Similarly, the other rectangle have the area f of x. Like this is f of xi. So we can write over here f of x I time delta x. So this is the area of the ith rectangle on of the region S, and then we can write that finally this is xn. This is because b is equal to xn, so
and this is the value of this function, which represent the height. So delta x is the width, so multiply this height with width, so we get the area of this rectangle. So now sum all these areas, so we get this is the area of the region S. This is the sum of the area of the region, and this sum is known as the Riemann sum. This sum is known as the Riemann sum. Now we properly define this area. Definition: the area of region S lies under the graph of the continuous function f as the limit of the sum of the areas of approximating rectangle. So these are the values of the approximating this integral. So area is equal to limit n tend to infinity, mean that we divide this region into infinite number of rectangles. So this is equal to n tend to infinity. N tend to infinity mean that we divide this region S in infinite number of in many intervals. So the now sum the area of this rectangle. So this is f of x1 delta x1 plus f of x2 delta x2 delta x plus and so on, and plus f of xn delta xn delta x. So this is known as the area of the region when you considering the right hand point, because we here f of x1 as this point, this is f of x1. We can write this area in summation form. This is for the discrete summation, because here we jump one rectangle, then second rectangle, third rectangle, fourth rectangle, so we use this summation. When we sum continuous phenomena, for that we use the integral sign, this one. So we can write this definition, this sum, in the form of summation notation. This is limit, this area as it is, and limit is as it is, and this is I is equal to 1 से लेकर n तक, because 1 से लेकर n तक ये summation है हमारे पास, ठीक है. So this represent the summation, and these are the indices or indices of this summation. And this is f of xy and delta x, because here no notation for x, so this is common delta x. So we can write this sum in this form. तो आप लोगों की मर्जी है, आप इस फॉर्म को याद रखना चाहते हैं, इस फॉर्म को याद रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे पास एरिया है व्हेन यू टेकिंग द एंड पॉइंट इज द राइट एंड पॉइंट. ठीक है, जब ये एंड पॉइंट आप लेते हैं राइट, लेफ्ट नहीं, जब लेफ्ट लेते हैं तो इसके लिए फार्मूला लगे. It is also can be shown that we get the same value if we use the left hand point. अगर आप लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लें तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. मैंने बता दिया कि आपने एक्स नॉट जो है x1 की बजाय आपने एक्स नॉट से स्टार्ट लेना है, बिकॉज दिस इज एक्स नॉट. ये हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट होता है, फिर ये x1 होता है. राइट हैंड लेना है तो फिर x1 से स्टार्ट लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है तो फिर एक्स नॉट से एफ ऑफ एक्स नॉट स्टार्ट लेना है. एंड इन द नोटेशन फॉर्म दिस इज एक्स एन माइनस वन, इसको आपने जहन में रखना है, डेल्टा एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड आ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट जो होता है एक्स एन माइनस वन होता है, तो ये जो वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन होता है. राइट हैंड के लिए हम एफ ऑफ एक्स एन लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड पे ये एक्स एन होता है, तो ये इसलिए हम एफ ऑफ एक्स एन लेते हैं, और इसमें यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ले लेते हैं. In summation form, we can write this I is equal to 1, I is equal to 1, mm, I running from 1 to n f of x I minus 1 delta x. तो मर्जी है आप लोगों को, ये फॉर्म आपको पसंद है तो ये फॉर्म आप याद कर लें, या डायरेक्टली ये फॉर्म होती है याद कर लें, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे तो फिर हमने ये फॉर्म यूज़ करना है, और राइट यूज़ करना है तो पिछले स्लाइड में भी बता दिया, तो उसको यूज़ करना है हमने. So a more general expression for the area S has
if you use the mid point, this is the mid point, दरमियान वाले अगर हम ले लें तो we denote these are, this is the x1 star, x2 star, x3 star, and these x1 star, x2 star, x3 star, and xi star and xn star, these are known as the sample points. These stars, these points are known as the sample points. So for general sample points, x1 star, ये just notation है, f of x1 star delta x plus f of x2 star, ये कोई भी रीजन आप ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये अब ये पॉइंट भी ले सकते हैं, एक तो ये लेफ्ट हैंड ले लें और राइट हैंड ले लें, फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये पॉइंट ले लें, मिड ले लें, इस साइड पे ले लें, ठीक है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। सो जनरली इसको हम, दिस इज द जनरल फॉर्म, x1 star, x2 star, x3 star, and so on. So in general we can write the area of this region as is equal to I is equal to 1 से लेकर n तक f of x I star delta x r। तो आपको ये फॉर्म भी याद आना चाहिए, या अगर आपके पास n फॉर एग्जांपल 3 है तो आप इसको 3 टर्म तक एक्सटेंड कर लें, n इज इक्वल टू 3 लिख लें, अगर n इज इक्वल टू 3 गिवन है आपको, ठीक है, तो ये 3 टर्म तक आप ले लें, यहाँ से लेकर एक यहाँ पे क्या और टर्म आ जाएगा, 3 टर्म तक आ जाएगा, बाकी वही चीज़ है, ये याद करना है या ये वाला याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, let A be the area of the region that lies under the graph of f of x is equal to e की power minus x between x is equal to 0 and x is equal to 1. This is the interval which is given. So given interval is 0 and 2. Okay. Use the right hand point. So आपने formula right hand point. Find an expression for the area A as limit. Do not evaluate the limit. Limit evaluate ना करें. Just represent the area A. So now since A is equal to 0, B is equal to, क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल गिवन है, this is A and this is B, so A is equal to 0 and B is equal to 2, so delta x is equal to B minus A divided by n, so B is equal to 2 minus 0 divided by n, so this is equal to 2 divided by n. Now x1 is equal to 2 divided by n, ये कहाँ से आ गया, इसको सब इंटरवल में डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, x1 xi इज इक्वल टू a प्लस i डेल्टा x, जो मैंने आपको बता दिया था, दिस वन i डेल्टा x, वेयर i इज इक्वल टू, ये राइट हैंड पॉइंट है तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेंगे, तो एक की जगह 0 है क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ये एक की जगह 0 है, तो ये जनरल फॉर्म में किस तरह इक्वल हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू, ये 0 है तो ये आई डेल्टा एक्स आ जाएगा, फिर x1 क्या बनेगा, when I is equal to 1, so x1 will be equal to delta x. So what is delta x? So x1 is equal to delta x आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया ना, और डेल्टा x किस चीज़ का इक्वल है, 2 डिवाइड बाई n, देयरफॉर x1 is equal to 2 डिवाइड बाई n। अब x2 क्या बनेगा, I की जगह 2 पुट कर ले, so this will be x2 and this is 2 टाइम डेल्टा x, और डेल्टा x हमें पता है 2 टाइम delta x is 2 divided by n, so this will be equal to 4 divided by n आ जाएगा, so x2 is equal to 4 divided by n, similarly x3 is equal to 6 divided by n, and generally xi will be equal to 2i divided by n i टर्म के लिए, and n टर्म के लिए xn के लिए क्या बनेगा, 2n डिवाइड बाई i की जगह n पुट कर लें, क्योंकि ये 1 से लेकर अप टू n तक है, ठीक है, तो i की जगह n पुट कर ले तो ये 2n डिवाइड बाई n आ जाएगा। नाउ सम, राइट सम किस चीज़ का इक्वल है, इसको डिनोट करते हैं rn से, दिस इज द रीमन सम, द रीमन सम, जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास एरिया बन जाता है। सो नाउ दिस इज f of x1 delta x
f of x2 delta x, f of xn delta x. This is the Riemann sum. So what is f of x1? या जस्ट रिप्लेस यहाँ पे x1 लिख लें, तो e की पावर माइनस x1 आ जाएगा, ये डेल्टा x एज इट इज आ जाएगा। f ऑफ x2 e की पावर माइनस x2 आ जाएगा, यहाँ पे x3 रिप्लेस xn रिप्लेस कर ले तो ये हमारे पास e की पावर xn आ जाएगा और साथ में डेल्टा x आ जाएगा। इसको क्योंकि डेल्टा x हमारे पास 2 डिवाइड बाई n का गिवन है, तो यहाँ हर स्टेप में पुट कर ले, यहाँ पे पुट कर ले, यहाँ पे पुट कर ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई n, 2 डिवाइड बाई n, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई n and so on. Now according to definition of area, this is Rn Riemann sum. When you apply the limit n tend to infinity on the Riemann sum, then this is known as the area under the curve or area for that region. So now applying the limit n tend to infinity, so 2 divided by n, this is take common, so ये कॉमन लेगा तो ये बच जाएगा हमारा e की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई n, ये बच जाएगा फिर e माइनस 2 and so on. So this is the area in the form of this is the area of the region. और क्वेश्चन में गिवन है कि इस लिमिट को आप इवैल्यूएट ना करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया बन गया। अब हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास समेशन की फॉर्म में आ जाएगा e की पावर माइनस 2i डिवाइड बाई n जनरल फॉर्म में। बी पार्ट विद n इज इक्वल टू 4, उसमें n गिवन नहीं था, उसमें जनरल में गिवन था n, यहाँ पे n गिवन है हमारे पास 4 है, ठीक है। Estimate the area by taking the simple point to be the midpoint and using the 4 subinterval and then 10 subinterval. तो पहले हमने मिड पॉइंट लेना है, ठीक है, और n हमारे पास गिवन है यूजिंग दी 4 सब इंटरवल। इंटरवल कितने पहले लेना चाहिए, पहले एग्जांपल में 4 लेना चाहिए, सेकंड में 10 लेना चाहिए, ठीक है। सो n इज गिवन, सो n इज इक्वल टू 4। जब n गिवन है 4 है तो डेल्टा x किस चीज़ का इक्वल है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n होता है। So b is given which is 2, a given is 0 और n यहाँ पे given है हमारे पास 4 sub interval. This delta x represent the sub interval, so difference between this interval. So this is 4, so this will be equal to 0.5, ठीक है। तो डेल्टा x हमारे पास क्या बनेगा 0.5, इसके दरमियान जो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना रहेगा 0.5 रहेगा। तो इनके जो सब इंटरवल बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ये इंटरवल, इस इंटरवल का 0 to 2 और सब इंटरवल बनाना है हमने। सो एक 0 बनेगा 0.5, फिर 0.5 बनेगा, 0.5 प्लस 0.5 सो 1 बन जाएगा, फिर 1 and 1 प्लस 0.5 सो 1.5, फिर 1.5, फिर 2, 1.5 प्लस 0.5 सो इक्वल टू 2। तो ये सब इंटरवल होगा, इसका मतलब ये कि इसको हमने इस इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द मिड ऑफ दीज सब इंटरवल। ये हमारे पास सब इंटरवल है, इसका मिड मालूम करें। मिड किस तरह मालूम करें, दोनों को सम करना, मतलब ये है कि ये जो x1 स्टार मालूम किया हुआ है, x1 स्टार इज इक्वल टू, इसको सम कर लें 0 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, so दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 0.25 आ जाता है। Similarly x2 which is the midpoint of this subinterval, x3 which is x3 star which is the sub midpoint of this interval,
and x4 star is the midpoint of this interval. So now we can write R4 लिख ले, M4 लिख ले, जो भी है ठीक है, जस्ट नोटेशन है, सम है. So I is equal to 1 से लेकर 4 f of x I star delta x, this is the general form, and x star here represent the midpoint of the interval. So इसको लिख सकते हैं हम, this is equal to in the form of f of x 1 star, इसको एक्सपेंड कर लें, 1 स्टार डेल्टा x, फिर आप लिख लें f of x 2 star delta x प्लस f of x 3 एंड देन एट द एंड क्या लिख लें, f of x 4 स्टार डेल्टा x. तो ये हमारे, फिर इसमें वैल्यू f of x1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास गिवन है, f of x ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है. सो f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x है, ठीक है. तो आप इसमें x1 स्टार पुट कर ले, x2 स्टार पुट कर ले, x3 स्टार पुट कर ले, x4 स्टार पुट कर ले, और इसकी वैल्यूज पुट कर ले. x1 स्टार की वैल्यू 0.25 है, तो यहाँ पे पुट कर ले 0.25, ये फंक्शन में ये वैल्यूज पुट कर ले, ठीक है. ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके e की पावर माइनस 0.25 आ जाएगा. डेल्टा x हमें नॉन है 0.5 है, जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ, ठीक है. और बाकी जो है सारे इसमें पुट कर लें, ये 0.5, ये 0.5, इसको आप कैलकुलेटर से सम करके और ये सिंप्लीफाई करके, सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन S, which is equal to this. Now using the 10 points with n is equal to 10 point, so the sub interval is divided by, क्योंकि 10 points है तो 10 points के लिए इसका मतलब ये कि डेल्टा x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.2 आ जाएगा. तो सब इंटरवल कैसे बनाते हैं हम, 0 देन 0.2, फिर हम लिखते हैं 0.2 और फिर 0.2 ऐड करते हैं इसमें, 0.2 प्लस 0.2 ऐड कर ले तो ये 0.4 आ जाएगा. तो ये सारे सब इंटरवल ये लिखे हुए हैं, देखिए. फिर हम क्या करेंगे, 0.4 लिखेंगे, 0.4 और 0.4 के साथ 0.2 ऐड कर लें, क्योंकि डेल्टा एक्स ही ऐड करते जाएंगे साथ साथ, तो ये 0.6 आ जाएगा. फिर सब इंटरवल क्या बनेगा, 0.6 एंड देन 0.6 के साथ ऐड कर ले 0.2, तो 0.8 आ जाएगा, एंड देन 0.8, ठीक है, एंड देन 0.8 के साथ 0.2 ऐड कर ले तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है. और इस तरह से मतलब ये 2 तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 2 तक है. तो जो 2 तक पहुंच जाते हैं 1.8 फिर 2 तक पहुंच जाता है. तो हमने क्या करना है, सो एरिया इज इक्वल टू आर द रीमन सम इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 1, इसका अच्छा मिड पॉइंट ऑफ इन सब जो हमारे पास सब इंटरवल आ जाते हैं ना, सारे इंटरवल, ठीक है, ये जितने सारे इंटरवल है सब इंटरवल है, तो इनका मिड लेना है. मिड कैसे लें, इन दोनों एंड पॉइंट्स को जमा करके 2 पे ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें इन दोनों को. तो इसको हम क्या कहेंगे, x1 स्टार विच इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके एंड पॉइंट को ऐड करके सब इंटरवल का जो एंड पॉइंट्स है इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें. सो दिस विल बी x1 स्टार हमारे पास आ जाएगा 0.1, x2 स्टार, x3 स्टार अप टू x10 स्टार, क्योंकि 10 सब इंटरवल हमारे पास मिल जाते हैं, तो इसलिए हम x10 स्टार तक चले जाते हैं. अच्छा, सो नाउ जस्ट यूजिंग जो गिवन फंक्शन है इसमें f ऑफ 0.1 पुट कर ले, f ऑफ 0.3 पुट कर ले, 5 पुट कर ले एंड सो ऑन, एंड f ऑफ 1.9 पुट कर ले.
और डेल्टा एक्स हमें पता है दिस 0.2, सो डेल्टा एक्स कॉमन ले लें यहाँ पे, दिस 0.2, और फिर ये फंक्शन की वैल्यू जो है जो कि इसके करस्पॉन्ड से है, इसके करस्पॉन्ड से है, इसके करस्पॉन्ड से है, और ये इसके करस्पॉन्ड वैल्यू है। तो इनको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास रीमन सम आ जाता है। Now coming to the definite integral. The definition of a definite integral: f is a function defined over the region in the interval x is greater or equal to a and less or equal to b. We divide the interval. This interval we can write in this form: an n subinterval of equal width delta x is equal to b minus a divided by n. This represents the equal width b minus a divided by n, and let x naught is equal to a, which is the starting point, then x1, x2, xn, which is the end point of this interval, which is equal to b, be the end point of this interval subinterval, and we let x1, x2 star, x3 be the any sample points. This be the any sample point. Any sample point mean that this sample point maybe this is the left point, right hand point, or the mid point, or some other point of the steps in this subinterval. So xi star lies in the ith subinterval, xi minus 1 xi. Let's suppose this is the ith subinterval, क्योंकि सब इंटरवल हमारे पास बहुत सारे हैं, x1 स्टार x2 स्टार है, x1 x2 है, तो xi minus 1 xi, this is again a subinterval, या xn minus 1 and xn is again a subinterval. Then the definite integral of f of a function f from a to b is known as the is given by a from a से लेकर b तक f of x dx is equal to n tend to infinity and f of xi star delta x, mean that the area, this is the definition of area of a region S. So this area is when n tend to infinity is equal to the definite integral. तो दिस दूसरे मीनिंग में जब हम इस रीजन जो हमारे पास गिवन रीजन है इसको हम जब इनफाइनाइट पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह कंटिन्यूस हमारे पास आ जाते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट में रीजन में छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं इनफाइनाइट, तो ये कंटिन्यूस फिनोमेना बन जाते हैं, इसमें बिल्कुल गैप का ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज इंटीग्रल. This is known as the definite integral, provided that this limit exists. If this limit exists, then this is known as the definite integral of a function f from a to b, and gives the same value for all possible choice of the sample point. If it does exist, we say f is integrable on this. If this limit exists, then we say that this function is integrable on the interval a से लेकर a to b. Note that the sample this was introduced by Leibniz and is called the integral sign. It is an elongated S and was chosen because an integral is the limit of sum. ये इस तरह sum से निकला हुआ है तो इसको elongate कर लें, इसको ज़रा खींचे ना, इस साइड को खींचिए, इस साइड को खींचिए, sum जो है ये इसी फॉर्म इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, and this was introduced by Leibniz first time. In this notation, f of x is called the integrand. This is known as the integrand, and a and b are the limit of this integration. Is the where a is the lower limit and b is the upper limit, and delta x is nothing here, but this is just the independent variable. The dx simply indicate that the independent variable as x. The procedure of calculating this integral is known as the integration. Now theorem: if f is integrable in this closed interval as a to b, then integral from a to b f of x dx is equal to limit n tend to infinity from I is running from 1 to n f of xi delta x p delta x
is equal to b minus a divided by n एंड एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये जो जनरल फॉर्म में स्टार्ट में मैंने बताया था, ये तो इस थ्योरम में और कुछ नहीं है, वही डिफिनीशन है इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का। लेकिन जस्ट इसमें ये मिसने मेंशन किया है कि ये हमारे पास एक्स आई है इज इक्वल टू वी आर, मैंने बताया था आई इज इक्वल टू अगर 1 से स्टार्ट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है और वी कैन से दैट दिस इज द साइज ऑफ द सब इंटरवल, वो भी इसे डिनोट हम कर सकते हैं। और अप टू एन तक अगर आई जीरो फिर वन फिर एन तक अगर हमारे पास है तो इसको हम कहते हैं दिस इज द दिस इज द राइट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड राइट हैंड पॉइंट। Evaluating the integral, we have to know about this thing, the summation of I when I is equal to 1 से लेकर n तक, this is equal to n into n plus 1 divided by 2। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, sum of the series। And when I square, then sum of this I square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। And when I cube, then this is equal to n into n plus 1 divided by 2 होल स्क्वायर। और कांस्टेंट का हम जो सम लेते हैं, ठीक है, तो इसका कांस्टेंट, इसका सम का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर लेट सपोज आपके पास 2 है और n तक है। दिस मीन दैट आपके पास 2 है n टाइम, 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 2 n टाइम आपके पास, n टाइम आपके पास। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिख लेते हैं समेशन के फॉर्म में। तो कांस्टेंट को लिख लेते हैं n टाइम ऑफ कांस्टेंट, तो n टाइम 2 तो या अच्छा, अगर कांस्टेंट और ए आई आ जाए तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं समेशन से, ठीक है। एंड वी कैन राइट आई इज इक्वल टू 1 टू n ए आई। और दो दो अगर आपके पास समेशन में है, दो नंबर अगर आप सीरीज आपके पास समेशन में है, आई बी आई है, तो इसके ऊपर अलग अलग हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो सीरीज आपके पास डिफरेंस में है तो इनके अलग अलग हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, ये चीज़ें यूज होती हैं और ये कांस्टेंट वाला यूज होता है। बाकी ये चीज़ें अप्लाई करना इसके ऊपर अलग अलग से अप्लाई होता है, जिस तरह हम इंटीग्रेशन अलग अलग से अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस दिस लिमिट एज ए इंटीग्रल ऑन द इंटरवल 0 to 5। ये अगर आप देख लें तो ये राइट साइड हमें गिवन है, इस डेफिनेशन में ये राइट साइड गिवन है। वो कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लें, इसी फॉर्म में लिख लें। तो इसकी कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, यहाँ पे लिमिट हमें गिवन है और इंटीग्रल इंटरवल गिवन है, तो ये सिंपल ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड ये आ जाएगा या राइट साइड ये आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लें, सो दिस इज द इंटरवल ए से फ्रॉम ए टू बी, and then write this thing over here. This is plus, this is not 1, x cube plus x sin of x into d of x आ जाएगा। ये सिंपल इंटीग्रल के फॉर्म में हमने लिखा। Now evaluate the Riemann sum for f of x is equal to x cube minus 6x, taking the simple point to be the right hand point and a is equal to 0, b is equal to 3 and n is equal to 6। So ये given है simple point to be the right hand point। तो राइट हैंड पॉइंट के लिए पहले पार्ट में ये करना है कि आपने रीमन सम मालूम करना है, इवैल्यूएट द रीमन सम। आपने जस्ट आर सम मालूम करना है, नॉट अप्लाइंग द लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो एरिया बन जाता है और एन दैट इक्वल टू डिफरेंशियल इंटीग्रल। सो एन इज गिवन व्हिच इज इक्वल टू 6 and delta x is equal to b minus a divided by n। So b is given 3 minus 0 and divided by n is given, that is, so this is equal to delta x is equal to 1.2 or 0.5, ठीक है।
So the right hand point are x1. Now calculate x1, x2, x3, x4. कितने स्टेप्स हैं? x n इज इक्वल टू 6 तक है, तो ये आपके पास x 6 तक चला जाएगा। और ये x1 कैसे कैलकुलेट कर लें, ये एक ही फार्मूला बताया हुआ है मैंने, a प्लस आई डेल्टा एक्स। यहाँ पे राइट हैंड पॉइंट है, सिंबल पॉइंट भी राइट हैंड पॉइंट, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ले लें, तो आपके पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, एंड नाउ यूजिंग द फार्मूला 1 से लेकर 6 तक n इज इक्वल टू 6 गिवन है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से 6 तक। तो इसको एक्सपेंड कर ले, तो ये f ऑफ x 0.5, f ऑफ x2 ये इस तरह आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 आ जाएगा, f ऑफ x1 डेल्टा x, फिर आ जाएगा f ऑफ x2 डेल्टा x प्लस f ऑफ xn डेल्टा x आ जाएगा, नहीं नो, f ऑफ x 6 आ जाएगा एंड डेल्टा x आ जाएगा। सो इसमें वैल्यूज पुट f ऑफ x1 की वैल्यू ये है 0.5 है, फिर डेल्टा x आ जाएगा, फिर f ऑफ x2 की वैल्यू है 1.0, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते जाएं। ठीक है, फिर फंक्शन में पुट कर लिए, फंक्शन हमारे पास गिवन है ये, तो इसमें आप पुट कर लें 1/2। ठीक है, इसमें भी वैल्यूज 0.5 पुट कर लें एक बार, फिर 1.0 पुट कर लें, 1.5 पुट कर लें एंड सो ऑन, ये सारे पुट कर लें। और डेल्टा एक्स हमें पता है 0.5 है या 1/2 है, सो 1/2 टाइम दिस वन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास एरिया रीमन सम बन गया। नाउ पार्ट बी, evaluate this integral from 0 to 3, this is 0, x cube minus 6x into dx with n sub interval, with n sub interval। यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करना है, तो n टेंड टू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे हमने n सब इंटरवल लेना है। सो इन जनरल डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n, सो b इज 3, a is 0, सो 3 डिवाइड बाय n आ गया, दिस मीन डेल्टा x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय n, क्योंकि इसमें हमें पास सब इंटरवल गिवन नहीं है, n गिवन नहीं है कि कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना है। ठीक है, so interval is given 0 to 3, so x naught is 0, x1 is using that formula, xi is equal to a plus i डेल्टा x यूज कर लें, so I is equal to 0। ठीक है, so this will be x naught is equal to 0, x1 is equal to 3 divided by n, फिर आप जाए ना xi तक जाए, xi तक जाए तो ये 3i डिवाइड बाय n आ जाएगा। ये जनरल मांग रहे हैं, जब आपके पास n गिवन नहीं है तो आप लोगों ने xi तक चले जाना है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, अगर n गिवन है तो फिर आप उसी पॉइंट तक, जिस तरह पिछले पार्ट में a इज इक्वल टू 6 गिवन था, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपने xi इज इक्वल टू 3i डिवाइड बाय n, i टर्म लेना है अपने। Since we are using the right end point, because I is equal to 0 से हम स्टार्ट लिए, x naught से स्टार्ट ले रहे हैं, so this is the right hand point। We can use the theorem 0 to 3 x cubed minus 6x dx is equal to limit n tend to infinity, because this is integral definition क्या है इसका, sum है when applying the limit f of xi delta xi। So what is f of xi? f of xi जब आप f of xi is equal to 3i divided by n, so this is equal to f of 3 divided by n, xi की जगह ये भी पुट कर लिया, डेल्टा x किस चीज का इक्वल है 3 डिवाइड बाय n का, सो ये 3 डिवाइड बाय n आ जाएगा। अब ये फंक्शन में पुट कर ले f ऑफ 3i डिवाइड बाय n, तो फंक्शन में पुट कर ले, फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस 6x है, तो ये इसका 3i का क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
माइनस 6 n x जो है 3i डिवाइड बाई एन आ जाएगा। और ये जो 3 डिवाइड बाई एन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज नॉट आयोटा, दिस इज आई। तो ये आपके पास आ जाएगा 27i क्यूब डिवाइड बाई एन आ जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मतलब 18i डिवाइड बाई एन आ जाएगा। सो देन वी कैन राइट दिस इज 27 एन क्यूब। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 81 डिवाइड बाई एन 4 आ जाएगा। ये कॉमन ले लें, सिर्फ आई आई रख लें, क्योंकि एन जो है हमारे पास एक आपके पास कॉमन आ रहा है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 54 डिवाइड बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आई आ गया समेशन में, यहाँ पे आई क्यूब आ गया। अब हमने पहले पढ़ा था कि आई क्यूब समेशन ऑफ आई क्यूब व्हेन आई इज इक्वल टू 1 टू एन and this is equal to n into n plus 1 divided by 2 whole square। और जब i होता है तो ये n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 होता है, ये समेशन जो कि पिछले हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। सो इसको इसका स्क्वायर कर ले, फिर यहाँ से n कॉमन ले लें। जब n कॉमन ले लें तो ये n इंटू n आ जाएगा, सो ये 4 बन जाएगा। 4 कॉमन ले लें तो ये n4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 1 प्लस 1 और n आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से n ले लें, n स्क्वायर कॉमन, n यहाँ से ले लें n, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 और n आ जाएगा। n स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ यूजिंग द लिमिट, व्हेन लिमिट अप्लाई करें तो 1 ओवर infinity is basically 0 and here this term is again 10 to 0। so इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, so this is equal to area minus 6.75। इसको एरिया चूंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस इंटीग्रल को हम जैसे एरिया इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास दिस इज द डिफरेंस ऑफ एरियाज आ जाते हैं। दिस इंटीग्रल कैन नॉट बी इंटरप्रेट एज एन एरिया बिकॉज इट टेक्स on both positive and negative values, but it can be interpreted as the difference of the areas A1. This is A1 area and this is A2 area, where A1 and A2 are shown in figure this। तो ये हमारे पास A1 एरिया A2 इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो डेफिनेटली दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है। सो नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एरिया क्यों नेगेटिव आ गया, एरिया तो पॉजिटिव होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिलो एंड अप एरिया। above the x is area, this is A1 and this is A2। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, दिस इज 6.75 डिफरेंस इन दोनों की एरिया में। Example 3, set of an expression for 1 to 3x dx is a limit of the sum। पिछले एग्जाम्पल में पार्ट बी में हमें गिवन था समेशन फॉर्म में और कह रहे थे कि इसको इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में है, वो कह रहे इसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। So we know that a is equal to 1, b is equal to 3, these are the limit or interval of integration and function is e की power x। So we can write delta x is equal to b minus a divided by n। So n unknown है, तो this is equal to 2 divided by n आ जाएगा। So x naught क्या है, again using this concept I is equal to a plus I delta x, where I is equal to 0 and so on। So x naught x1 x2 up to x3 and xi तक, क्योंकि यहाँ पे n गिवन नहीं है, ये मैंने कहा था n गिवन नहीं है तो हमने xi तक जाना है, ठीक है। सो xi is equal to 1 plus 2i divided by n। ये xi तक हम चले गए। Therefore by using the theorem, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, this integral is equal to f of xi delta xi by using the theorem 4। so we can write in the form of xi, what is xi, क्योंकि यहाँ पे xi यूज होता है तो ये xy की जगह ये वैल्यूज पुट कर लें। so ये आपके पास 1 plus 2i divided by n and this is the delta x। so फिर फंक्शन में पुट कर लें
तो e की पावर 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई n एंड दिस इज 2 डिवाइड बाई n, ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज द सम फॉर्म। इंटीग्रल को हमने सम के फॉर्म में लिख लिया। कभी कभार गिवन होता है सम के फॉर्म से इंटीग्रल कर लिख लें, कभी कभार गिवन होता है इंटीग्रल के फॉर्म से सम लिख लें। मिड पॉइंट रूल ये है, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमने पढ़ लिया इस चीज़ को। एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स विच वी कैन राइट इन द एक्सटेंड फॉर्म डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स एन, और डेल्टा एक्स इस चीज़ का इक्वल है, ये पहले डिस्कस किया। मिड पॉइंट है तो फाइनल इनिशियल दोनों ऐड कर ले इंटरवल का, एक्स आई, क्योंकि आई टर्म का सब इंटरवल है, मिड पॉइंट है, और ये बार लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, तो एफ ऑफ एक्स वन बार एफ ऑफ एक्स टू बार आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वही जो मैंने बता दिया कि सब इंटरवल का जो पहला पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट को ऐड कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास मिड टर्म बन जाता है। तो ये मिड पॉइंट बन गया हमारे पास। use the midpoint rule with n is equal to 5 to approximate this integral। इसको इस तरह नहीं करना कि इसका इंटीग्रेशन 1 बाय ln ऑफ x और दी अपर लिमिट माइनस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमने नहीं पढ़ा अभी तक। सो n is equal to 5 गिवन है, using this delta x is equal to 2 minus 1 divided by 5, so this is equal to 1 divided by 5। इसको n is equal to 5 है तो ये 5 सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर लें। इंटरवल का मैंने बता दिया कि हर एक के दरमियान स्टार्टिंग क्या है, 1 है इंटरवल का, ये 1 है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है 1.5 है, ठीक है, फिर इसके साथ 1.5 ऐड कर ले, 1/5 ऐड करते जाए, 1/5 ऐड करते जाए, तो ये हमारे पास सब इंटरवल के पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो नाउ एफ ऑफ x1 f of x2 f of x3 f of x4 and so on, and this is delta x using the sum। तो ये हमारे पास 1/5 1/this one 1/3, और इसको फिर सम अप कर ले तो ये हमारे पास दिस इज द इंटीग्रल मिड पॉइंट यूजिंग द मिड पॉइंट रूल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रल, ए से लेकर बी तक सी एक डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाते हैं अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। सो ये कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ये बी माइनस ए होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सम में आ जाए तो अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर लिमिट। कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट बाहर निकालें, और ये हम लिख सकते हैं ए टाइम बी, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और डिफरेंस आ जाए तो अगेन हम इसको अलग अलग डिफरेंट निकल, जिस तरह हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं उसमें लिमिट्स नहीं होती थी, बाकी वही रूल्स हैं, वही फार्मूलाज है। और यहाँ पे अगर आपके पास ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन लेस देन बी, मतलब ये कि पहले सी की वैल्यू ग्रेटर है फिर ए की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में इस इंटीग्रल को हम दो इंटरवल में स्प्लिट कर सकते हैं, ए से लेकर सी तक एंड सी से लेकर बी तक, दिस इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक। इसका मतलब है कि मैंने इंटरवल को स्प्लिट किया दो इंटरवल में, ए से लेकर सी तक इंटीग्रेट किया, फिर सी से लेकर बी तक इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू अगर मैं ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर लूँ, एक और रूल है हमारे पास। ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाते हैं, अगर ये फंक्शन एब्सोल्यूट होता है या जंप कंटिन्यूस होता है, पॉइंट्स पे डिफाइन होता है, ठीक है, तो या पीस वाइज फंक्शन जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम ये इंटरवल स्प्लिट कर लेते हैं, ए से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक, तीसरे पीस वाइज फंक्शन में हमारे पास आ जाता है। प्रॉपर्टी यूज होती है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल टू इवैल्यूएट 0 to 1 एंड दिस इंटीग्रल। सो इसके ऊपर प्रॉपर्टीज यूज कर ले, तो इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई करें, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें। सो 0 to 1 4 dx एंड 0 to 1 3x स्क्वायर dx। यूजिंग द प्रॉपर्टी ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, और ये 4 है, 3 बाहर आ गया हमारे पास। नाउ इसका इंटीग्रल ले ले तो यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी 1 c कांस्टेंट, सो कांस्टेंट इधर आ जाएगा, ये अपर माइनस लोअर
तो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसका इंटीग्रल पिछले हमने कैलकुलेट किया 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर विच वाज इक्वल टू 1/3। ये लिमिट हमने इसको नहीं किया कि इसका पावर एक इंक्रीज कर डिवाइड कर ले और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये डायरेक्टली नहीं है, ये सिर्फ आपने आपने प्रॉपर्टी यूज करके आपने इवेलुएट करना है, अपने फंडामेंटल थ्योरम आप कैलकुलस यूज नहीं करना। ठीक है, अगेन फिर 0 से लेकर 1 तक, तो इसका इंटीग्रल जो हमारे पास, इसका इंटीग्रल 4 आ रहा है, इसका 1/3 आ रहा है, तो दोनों को सम अप कर ले तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गई है इनका बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, if f is continuous in the closed interval, then the function g defined by this from a से लेकर x तक f of t dt, where x is greater or equal to a and less than b, is continuous in this interval. If this function is continuous and differentiable on this open interval, then we can write the derivative of this integral is equal to f of x. इसका मतलब क्या है कि इस जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव किस चीज़ का इक्वल है, इसका इक्वल है कि आप ये फंक्शन का इक्वल होगा, ये एफ ऑफ टी है ना, जस्ट ये टी की जगह आप एक्स रिप्लेस कर ले तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। या इन सिंपल वर्ड मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन g of x, this is the derivative of a to x f of t into dt. So this derivative is equal to, क्योंकि ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये सिर्फ आपने दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखना है, टी को एक्स की जगह रिप्लेस करना है बस, दिस इज द डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव नोटेशन को नोटेशन में लिख सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो ये हमारा, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तब ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव ले लेते क्या करना है, चेंज द डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ले ले दोनों साइड से, ये मैं इधर ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन with respect to x, because this function is depend on x. Okay, so this is derivative with respect to x, and this is 0 to x, and this is under root 1 plus t square and to dt. So what is the derivative of this one? Just this is the function लिख ले, और जो पैरामीटर t है, थीटा है, जो भी है, इसको इसी पैरामीटर से रिप्लेस करना है आपने। ठीक है, बाय यूजिंग द थ्योरम, कि जो पैरामीटर है वो t ने इसने इसी पैरामीटर से रिप्लेस किया हुआ। सो दिस इज इक्वल टू फंक्शन, दिस इज फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन is equal to 1 plus x square under the root। बाकी सारे इसी तरीके से हैं। एक और एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 to x पावर 4 secant t dt। देखें हमारे पास जो थ्योरम है, ये जनरल फॉर्म इसका याद रख लें, a से लेकर x तक है, नॉट एक्स स्क्वायर, नॉट x4, नॉट x3, नॉट x अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये x4 तक है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, लेट यूज इक्वल टू x पावर 4। आपके पास जो भी है, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ कि इसको, इसका डेरिवेटिव ले लें 1 से लेकर सीकन 1 से लेकर ln ऑफ x, और यहाँ पे कोई फंक्शन आपके पास है, तो आपने इस फंक्शन को यू का सपोज कर देना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारे पास x है, नॉट ln ऑफ x है, नॉट x स्क्वायर है, x4 है। सो तो इसके लिए फिर हमने चेन यूज करना है। ठीक है, जब इस तरह फॉर्म आ जाते हैं ना, x के अलावा आ जाए, तो यहाँ पे साइन आए, कास एक्स स्क्वायर x4 अंडर रूट आ जाए, तो फिर हमने इसको u का सपोज करना है, और फिर इसके ऊपर हमने चेन रूल यूज करना है। सो वी कैन राइट दिस secant dt। तो इसको u की जगह u पुट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 1 से लेकर u तक आ जाएगा। फिर हमने
different using the chain rule. So ये d by d derivative of with respect to u and then du dx. सो ये देखे ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर आप देख ले एक सेंस में, ठीक है। तो ये डी एक्स बच जाता है हमारे पास। तो दिस इज नोन एज द चेन रूल। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन ले लें। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन में जस्ट यू टी टी की जगह यू पुट कर ले। सो फंक्शन सीकन टी है, तो सीकन टी में यू रिप्लेस कर ले टी की जगह, तो ये सीकन यू आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास डी यू डी एक्स आ गया। तो व्हाट इज डी यू डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर लें, सो ये 4x³ आ जाएगा। तो ये पुट कर ले इसमें, तो ये इसकी जगह पुट कर ले, तो ये 4x³ आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले यार, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। Now the fundamental theorem of calculus part 2, if f is continuous in this interval, then the limit from a to b f of x dx, we can write the upper limit, पहले इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपने where f is any antiderivative of f, that is a function such that f prime is equal to f, where f is the antiderivative, mean that पहले आप इंटीग्रेशन ले लें, ठीक है। इसके बाद इसमें लिमिट पुट कर ले। फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन e की पावर x है। सो इज कंटिन्यूस इवन एंड वी नो दैट द इंटीग्रेटिव ऑफ दिस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। सो हमने f ऑफ e f ऑफ 3 पुट करना है, फिर f ऑफ 1 पुट करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर 3 माइनस e। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या है, e की पावर x होता है, और फिर ये वैल्यू पुट करना है अपने 1 से लेकर 3 तक। तो यूजिंग दिस फंडामेंटल थ्योरम, तो e की पावर 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, अप्लाइंग e की पावर 1। तो वही आंसर हमारे पास आ गया। नाउ फाइंड द एरिया अंडर द पैराबोला y is equal to x square फ्रॉम 0 to 1। कैसे मालूम करेंगे, जस्ट आप इंटीग्रेशन ले लें, एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 एंड फंक्शन इज गिवन विच इज x स्क्वायर dx। सो इसका इंटीग्रेशन ले लें पहले, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें। तो इंटीग्रेशन आप x स्क्वायर क्या है, x एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इस पर डिवाइड हो जाएगा। फिर लिमिट ले ले, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। तो इसमें एक बार 1 पुट कर ले, तो ये 1/3 आ जाएगा। एक बार 0 पुट कर 0/3 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/3 इसका एरिया आ गया। Similarly, find the area of the cosine curve from 0 to b, where b is greater or equal to 0 and less or equal to pi/2। तो आप ये आपके पास लिमिट्स गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, कोसाइन कर्व है। सो 0 to b cos of x dx है। सो इंटीग्रल ऑफ cos is sin, सो 0 to b sin b माइनस sin 0, sin 0 इज इक्वल टू 0 होता है, एंड s इज इक्वल टू sin b हमारे पास आ गया। तो ये इसके लिमिट्स है, 0 to pi/2 है। Now the question is what is wrong with the following calculation, इसमें क्या गलती है कि ये 1/x² -1 से लेकर 3 तक, तो इसका इंटीग्रेशन ले ले, यू पर चला जाएगा। इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज कर लेते हैं, एक डिवाइड कर लें, तो इंक्रीज कर लें तो ये -2 + 1, तो ये -1 आ जाएगा। नीचे भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपर लिमिट अप्लाई करें, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें, तो ये -4 है। वो कह रहा है इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में, -1 से लेकर 3 तक, क्योंकि -1 से लेकर 3 तक इसमें 0 भी आता है ना, और 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। जब इसमें 0 पुट कर ले तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 1/∞, 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है।
सो इस इंटीग्रल, इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है ये -1 से लेकर 3 तक 1/, इसका एरिया एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने कहा था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, तब ये फंक्शन इंटीग्रेबल ओवर सम इंटरवल है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन है 0 से लेकर 2 तक, इसका इंटीग्रेशन ले लें, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन वही तरीका है, जस्ट आपने फिर इसमें ये अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। तो इसका अलग अलग से इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे पास इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, इसका पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी डिवाइड हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि दिस इज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है। फिर अपर लिमिट अप्लाई करें इस इन सारे के ऊपर, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें, ठीक है। सो जब ये लिमिट अप्लाई करी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 हो जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी फॉर्म -4 + 3 टेंजेंट इनवर्स 2 आ गया, दिस इज द इंटीग्रल। और ये आप खुद ट्राई करिए इस चीज़ को, 1 से लेकर 9, इसका इंटीग्रेशन मालूम करें, ये टी अलग अलग लिख लें तो ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1/t² आ जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम। अब कैलकुलस पार्ट 2, सब्स्टिट्यूशन रूल फॉर द डिफरेंट इंटीग्रल। सब्स्टिट्यूशन रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने n डिफरेंट इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ किए हैं, सिमिलरली आप डिफरेंट इंटीग्रल की भी यूज़ कर सकते हैं। g prime is continuous in this interval and f is continuous on the range of u is equal to, then we can write u is equal to g of x, then लिमिट्स आपने एग्रेसिव फॉर्म में है f इंटू जी ऑफ एक्स जी प्राइम डी एक्स, तो इसके लिमिट बी ए से लेकर बी तक है। तो फिर हमने इसके लिमिट चेंज करना है जब हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसका लिमिट चेंज करना है। ये यू जी अब बी लिखना है, मतलब इसमें जी में जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है इसमें जी पुट करना है और इसमें ए भी पुट करना है। तो ये और जो ये जी एक्स की जगह यू पुट कर ले, ठीक है। और ये जो आपके पास ये जो नज़र आ रहा है जी प्राइम डी एक्स, इसकी जगह डी यू रिप्लेस कर ले। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिमिट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज द फंक्शन डी एक्स है। सो यूजिंग यू इज इक्वल टू 2x + 1, इसको u का सब्स्टिट्यूट कर लें तो डी यू क्या बनेगा, इसका डी एक्स ले लें, ठीक है। तो ये डी यू आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू 2dx बन जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर ले तो 1/2 डी यू आ जाएगा, डी एक्स यहाँ से नोन हो गया, ठीक है। और लिमिट जो हमने चेंज करना है, व्हेन x इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू g ऑफ x, इस तरह u इज इक्वल टू g ऑफ x है ना, तो u इज इक्वल टू ये हमारे पास g ऑफ x है। व्हेन x इक्वल टू 0 तो ये u की वैल्यू 1 है, ठीक है, u इज 1। व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो इसमें पुट कर ले तो ये x इज इक्वल टू 4, तो ये 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो अब हमारे पास इंटीग्रल चेंज हो गया, अभी 0 से लेकर 4 तक 2x + 1 dx किस फॉर्म में चला गया, 1 से लेकर 9 तक 1/2, और ये सारा सब्स्टिट्यूशन हमने ले लिया अंडर रूट u एंड डी यू। फिर ये इसका इंटीग्रेशन ले लें, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आए इसको ये, और इसका इंटीग्रेशन ले लें तो ये एक वैल्यू 1/2 एक इंक्रीज कर लें, इसमें 1 इंक्रीज कर लें, इसके ऊपर डिवाइड कर लें, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद ट्राई कर लें। Integral of symmetric function, suppose f is continuous in the interval -a to a, if f is even then f of x minus x is equal to f of x होता है, this is the even function definition। तो फिर -a से लेकर a तक ये जो इंटीग्रल होता है वो 2 टाइम्स 0 से लेकर a f of x होता है। और अगर f इज ऑड फंक्शन है, मतलब ये ऑड फंक्शन की ये डिफिनीशन है, अगर आप इसमें x की जगह नेगेटिव रिप्लेस कर ले तो ये नेगेटिव टाइम f of x आ जाता है। तो फिर इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है -a से लेकर a तक, तो वो
जीरो का इक्वल है। अब फंक्शन को देख ले, ये लिमिट ये याद रख ले कि दोनों सेम है लेकिन माइनस ए से लेकर ए तक। लेट सपोज -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। और अगर फंक्शन आपके पास इवन है, ठीक है, इवन है तो आपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम 0 से लेकर ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर ऑड है आपके पास तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये ऑटोमेटिकली जीरो का इक्वल हो जाता है। बेनिशियस, दिस इज बेनिशियस। फॉर एग्जाम्पल, if of x equal to x की पावर 6 प्लस 1 सेटिस्फाई दिस, माइनस इसकी जगह -1 पुट कर ले तो ये हमारे प्लस प्लस आ जाता है। तो ये इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन थे तो फंक्शन है तो ये जो इंटीग्रल है -2 से लेकर 2 तक x की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स, वी कैन राइट दिस इज 2 टाइम 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर, बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन। तो अब इसका इंटीग्रेशन ले लें, पावर इंक्रीज कर इस पर डिवाइड कर ले, पावर इंक्रीज कर इस पर डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। और ये अगर आप इस फंक्शन को देख ले तो ये इसमें अगर आप एक्स पुट कर ले, माइनस पुट कर ले तो ये माइनस टाइम एक्स पाप एक्स आ जाता है। ये 8 फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल -1 से लेकर 1 तक, तो ये इसका इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक 0 है। ये आपके पास लिमिट्स गिवन है -1 से लेकर 1 तक। ये अगर आप -2 से लेकर -2 तक ले लें, -2 से लेकर 2 तक ले लें तो फिर भी वो 0 है। -5 से लेकर 5 तक ले लें तो वो भी 0 है। ट्राइग्नोम ये मैंने चैप्टर नंबर 7 से एक एग्जांपल वहाँ से मैंने छोड़ लिया था। तो ये 7.3 आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 का कम्बिनेशन में लिख लेना। चैप्टर 6 जो अलग है, लेकिन ये जो अभी स्लाइड्स है ना, ये सारे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर 7 चैप्टर 5 मैंने दोनों कंबाइन की हुई, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। फाइंड एरिया enclosed by the ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1. So solving the equation for the ellipse for y, the y के लिए इसको सॉल्व कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको इस राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले ले तो ये इधर मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर बी बी इधर मल्टीप्लाई कर ले, इस इधर मल्टीप्लाई कर ले राइट साइड पे, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर रह गया तो फिर इसका अंडर रूट ले लें तो ये वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बिकॉज द एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, क्योंकि एलिप्स सिमेट्रिक होता है, इस तरह का शेप होता है एलिप्स का। द टोटल एरिया ऑफ ए इज 4 टाइम द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 4 पोर्शन है इस तरह, तो हम कहेंगे कि एरिया इसका 4 टाइम है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक पोर्शन कैलकुलेट करना है। ये एरिया हम मालूम कर लेंगे क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं क्वाड्रेंट में, तो इसका एरिया जो है वो 4 टाइम ये एक ही क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों ने एक ही ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स शेप है आपके पास, एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो ये ओरिजिन होता है, ये हमारे पास ए होता है एलिप्स में, और यहाँ से लेकर ये तक ये बी होता है। तो हमने इंटीग्रेशन इस क्वाड्रेंट का लेना है। तो लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर ए तक लेना है, या ये आपके पास इंटरवल आपके पास आ रहा है। और ये पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने लिया हुआ y इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 ए, ये क्वार्टर है, ठीक है, एक ही क्वार्टर का है, क्वार्टर है। तो क्वार्टर का मतलब ये 1/4, मतलब इन ये फोर पार्ट्स है ना, हमारे पास 4 पार्ट्स है, तो एक पार्ट किस चीज़ का इक्वल हो जाएगा, 1/4 का। तो एक का मालूम कर लेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/4 ए 0 से लेकर ए तक बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस। और जब हमारे पास इस तरह इंटीग्रेशन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ए। तो इसका डी एक्स किस चीज़ का इक्वल है, ए कॉस थीटा डी थीटा,
फिर हमने इस लिमिट को भी चेंज करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमने लिमिट भी चेंज करना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है यूजिंग दी थ्योरम। सो व्हेन x is equal to 0, then when x is equal to 0, then sin theta is equal to what? क्योंकि x equal to 0 है तो sin थीटा क्या बन जाएगा यहाँ से 0 टाइम a and to sin of theta, ठीक है। so a is not equal to 0, so this means that sin theta is equal to 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एंड सो थीटा इज इक्वल टू, और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है। व्हेन एक्स इक्वल टू ए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ए पुट कर लेते ये कैंसिल आउट हो गया। और साइन थीटा कब 1 का इक्वल होता है? जब साइन पाई बाई 2 होता है। साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा पाई बाई 2 होता है। तो ये हमारे पास नई जो लिमिट्स आ रहे हैं ना, वो हमारे पास आ गए 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अच्छा, अब इसमें पुट कर ले x की जगह ए स्क्वायर साइन थीटा, ये पुट कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले, ए कामन ले ले इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर थीटा, ये एब्सोल्यूट इधर से इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, सिंपल है cos थीटा आ गया। और लिमिट हमारे पास है गिवन है, थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू पाई बाई 2। सो ये इंटीग्रल आप ले लें, ए इज इक्वल टू 4 टाइम बी, ये आप इसमें पुट कर लें, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एरिया हमारे पास एलिप्स का आ जाएगा। 0 टू ए दिस इंटीग्रल, ये जो हमारे पास ये इंटीग्रल है, इज इक्वल टू 4 और ए, और ये जो हमने चेंज किया, ठीक है, वेरिएबल को चेंज कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन ले लिया। सो ये ए cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स की चीज़ का इक्वल है, ए cos थीटा डी थीटा का इक्वल है। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा आ गया। और cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, या हम लिख देते हैं ना 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा, और इस तरह आ जाए 1 माइनस cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज है, ये यूज होता है इसमें। अच्छा, अब अलग अलग से इंटीग्रेशन ले ले, इसका अलग इंटीग्रेशन ले ले, इसका अलग 1/2 बाहर निकाले, ठीक है, तो 1/2 बाहर निकाले तो ये 4 को 2 कर लेगा, और इसका इंटीग्रेशन थीटा है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा है, और ये 1/2 भी आ जाता है साथ में। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज जस्ट यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2। सिमिलरली आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें अगर ए और बी दोनों इक्वल है, आर का इक्वल है, तो ये हमारे पास सर्कल हमारे पास आ जाते हैं, ये प्रूफ हो जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर का इक्वल होता है। In the next lecture we will discuss about the application of integration। या तो ये चैप्टर ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक टॉपिक है, या इसको हमने कवर कर लेना है।